Good morning, student. This is Rajesh, and today, once again, I am coming with a very interesting topic related to geography, chapter 2, inside the earth. Student, if you remember in my previous video, we discussed some important facts, some important concept too. We have asked there, I mentioned there, interior of the earth is a hollow sphere or something lie between the interior of the earth. When we start the topic interior of the earth, there we already discussed something about that one. In those videos we discussed about crust. Actually, interior of the earth is made up of three concentric layers. That is the crust, mantle and core. So in my previous video we discussed about crust. The top, most and hard layer of earth is crust. Crust is lie on. Actually, when we discuss about lithosphere, where the lay, the lithosphere divided into two parts. Number one is the continental mass and the oceanic mass. So crust is lying from 35 kilometers interior of the earth. How we know that? Anybody go interior of the earth? No, definitely not. So how we know that? We know that fact with the help of some scientific researches, some scientific studies. So crust divided into two parts. Number one is the continental crust, continental mass, and second one is the oceanic mass. So depth of crust of the continental mass is 35 kilometers. But in the oceanic masses, only about 5 kilometers. The oceanic mass are highly compressed due to the high density, and it made up of different mineral constituents. If you remember, when we discussed two important words, Sial and Sima. SIAL, Sial, and SIMA, Sima. So Sial, that is the Si for silicon and Al for alumina, or you can say that silicon and aluminium made up of continental crust. यानी continental crust जो है उसमें दो मिनरल्स पाए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिना. बट जब हम ओसेनिक crust की तरफ जाते हैं which is only 5 किलोमीटर डेप्थ, जो 5 किलोमीटर डेप्थ है वो दो मिनरल कॉन्स्टेंट से बना है, सियाल एंड मैग्नीशियम, दैट इज नोन एज द सीमा. सो ये डिफरेंस हमें याद रखना, सियाल एंड सीमा. एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये कंटिनेंटल जोन. सपोज कर लो दैट इज द लिथोस्फीयर. इस लिथोस्फीयर पे माउंटेन है, लैंड है, जो भी देख सकते हो. एंड ocean that is the hollow part where water slides. That is the ocean and this is the land masses. For example, if you take the crust is about crust layer, the bottom layer of crust is from here. जो बॉटम लेयर है क्रस्ट का वो यहाँ है, और आप अब कंटिनेंटल जो मासेस पे आते हो, सपोज कर लो अब यहाँ दैट इज द ओशंस. सो डेप्थ होगी ना इसकी ओशन की. अब ऐसा थोड़ी है कि हम डेप्थ में चले जाएं, इसका भी कहीं ना कहीं एक बॉटम होगा, एक लैंड फॉर्म मिलेगा ओशन के अंदर भी. सो द डेप्थ फ्रॉम द ओशनिक क्रस्ट, ये ओशनिक मास का जो क्रस्ट का है only about 5 kilometers, but thus their soil is highly compressed
and this soil is made up of shima, that means silicon and magnesium. Okay, and from continental masses, the depth of the crust, this is the boundary of crust, यह top bottom layer है crust का, तो इसकी जो depth है that is the 35 किलोमीटर, and it has the land density of soil, density इसकी कम होती है. इस दो मिनरल कांस्टेंट से बना हुआ that is the Sial, SiAl. Si stand for silicon and Al stand for alumina. So दो ही हम मिनरल कांस्टेंट पढ़े हैं. अब हम नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं. आई होप कि ये सारी चीजें काफी हैं ये समझने के लिए. अब हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं. दैट इज अ मेंटल. एक्चुअली मेंटल वर्ड कम फ्रॉम द मैग्मा, मग्मा से आया हुआ है. ये मग्मा क्या है? अपने वोल्केनिक इरप्शंस जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपने देखा होगा लैंड है, दैट इज द माउंटेन्स, दिस इज द क्रेटर जहां से वोल्केनिक इरप्शन होता है, और इनसाइड द जो है बिल्कुल एक फायर और लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड भी नहीं कह सकते आप, एक्वेसियस फॉर्म कह सकते हो. एक्वेसियस फॉर्म कैसे कह सकते हो? जैसे आप कफ सिरप वगैरह देखते हो तो उसमें सॉलिड पार्टिकल भी सस्पेंडेड होते हैं. इन सच टाइप, दैट इज द एक्वेसियस फॉर्म ऑफ फायर. ये आग का एक्वेसियस फॉर्म है, और ये बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है. हीट होगा तो प्रेशर होगा ना उस पर, तो जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है दे फ्लो फ्रॉम थ्रू द क्रैटर्स, और दिस नोन एज द मग्मा, और इसी को क्या कहते हैं? मग्मा. सो मेंटल यहां पे जो अर्थ का है वो एक्चुअली क्या है? वो मग्मा है. ओके, क्लियर? एंड दिस इज द 29,000 from 35 kilometer. Look here, from 35 kilometer to 29,000. Not the 22,900 kilometers. Near about, this is the this area becomes the mantle. And the third one is the core, the innermost part of our earth. यह है कोर. ओके, और कोर क्या है? अगर आप एक डिग्री कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनाते हैं, सपोज कर लो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनाते हैं कि आपका अर्थ हो गया, अर्थ को हम एक कह सकते हैं कि एक पार्ट हो गया वो आपका क्रस्ट हो गया, एंड क्रस्ट के बाद क्या है कि एक हम और रेडियस ले लेते हैं, ये कुछ डेप्थ हो गया क्रस्ट का, यहाँ तक सब क्रस्ट हो गया, यहाँ से हमारा एक दूसरा पार्ट हो गया दैट इज द मेंटल, एंड द थर्ड रेडियस जो है नियर अबाउट 35,000 किलोमीटर का जो रेडियस होता है, 35,000 किलोमीटर, और ह्यूज डायमीटर ऑफ द कोर. कोर का एक बहुत बड़ा डायमीटर है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ कोर. और कोर में दो मिनरल कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, दैट इज द निकेल एंड आयरन. कोर किससे बना है? कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? निकेल एंड आयरन. आप इसको नोट कर सकते हो, NiFe, NiFe, Ni फॉर निकेल एंड Fe फॉर फेरस. एक्चुअली आयरन का जो है लैटिन जो है फेरस है, फेरम है, तो उसका सिंबल जो क्या है? Fe है. ओके, उसका सिंबल क्या है? Okay, so Fe that is the iron and Ni that is the nickel. So core जो है दो मिनरल कांस्टेंट पाए जाते हैं, निकेल एंड आयरन. ओके, क्लियर? ओके, प्लीज सर. सचिव सर, दैट इज वीडियो चल रहा है. ओके, तो इस तरह से हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक दैट इज द रॉक्स एंड मिनरल्स. अब रॉक्स और मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करें. नाउ मैं आपको यहाँ मूव कराता हूँ. रॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉक्स. रॉक्स क्या है?
natural mass of mineral matters, that is it, natural mass of mineral matter, natural that means naturally created है, और क्या है मिनरल मैटर है, मिनरल से बने हुए हैं। मिनरल क्या है, जैसे हमने आपको देखा, आपने सियार और एल्युमिनियम देखा, या सियार और मैग्नीशियम देखा, या आपने निकल और फेरम देखा, तो दैट इज द natural mineral masses known as the rocks. They can be different color and rocks be different in colors. कलर इनका क्या है, डिफरेंट है, साइज इनके डिफरेंट है, एंड टेक्सचर जो इनकी सतह है, कोई रफ है कोई स्मूथ है, तो ये रॉक्स जो है वेरी करते हैं साइज में, कलर में और टेक्सचर में। ओके, सो ऑन दिस बेसिस rocks are divided into three major groups, that is the number 1 igneous rocks, या इमेज में रहेगा igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. There are three kind of rocks on the basis of size, on the basis of color, on the basis of textures. Rocks divided into three major groups, that is the igneous, sedimentary and metamorphic rocks. We must discuss detail in all the three rocks, but today we are going to tell you only a particular rock, that is the igneous rocks. First of all, we know the meaning of igneous. Actually, igneous word is come from a Latin word ignis. Igneous एक Latin word है जो ignis से लिया गया है. Meaning is that fire, आग. ignis लैटिन वर्ड का क्या मीनिंग है, आग. सो आप कोरिलेट कर सकते हो कि जब हम igneous rocks करेंगे, दैट इज द फायर, और फायर कहां पढ़े आपने, मग्मा. मग्मा कहां पढ़ा आपने, मेंटल कोर में, मेंटल में पढ़ा. तो जो एक्वेसियस फॉर्म है फायर का, जो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू होता है, दैट इज द मग्मा. सो नो डाउट सच टाइप ऑफ रॉक मेड अप ऑफ मग्मा. हाउ दिस रॉक्स फॉर्म, कैसे बनते हैं, लेट मी डिस्कवर इट. igneous rocks, igneous made up of ignis, igneous word not rocks, igneous word made up of ignis means fire, arc. How this rock form, when molten magma, a molten magma क्या है, so once again we make the diagram here, that is the land. ये लैंड पार्ट है, वेल नहीं और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कर सकते हो. इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे हमारे जो है माउंटेन्स है, तो आप देखोगे यहाँ क्रैटर्स है जहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होता है. ड्यू टू द ह्यूज प्रेशर दिस मोल्टेन magma came on earth through the craters. और जब craters जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ पे तो हीट जाएगा. बट एज दे रीच ऑन द अर्थ, जब ये अर्थ पे पहुंचते हैं, इट स्टार्ट टू बिकम कूल. ये कूल होना शुरू हो जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही, 4 दिन में ही, 1 वीक 1 मंथ में ही कूल हो जाते हैं. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. ये लॉन्ग प्रोसेस है. बट दे बिकम कूल. व्हेन दे बिकम कूल, they change into igneous rocks, such rock which we made from this magma known as igneous rocks. Okay, clear? igneous rocks को भी हम देखेंगे. igneous rocks are also called primary rock. primary that means प्राथमिक. स्कूल में जाते हो ना, जब एजुकेशन स्टार्ट करते हो तो पहले क्या होता है, प्राइमरी, फिर क्या हो गया सेकेंडरी, फिर क्या हो गया सीनियर सेकेंडरी, फिर क्या हो गया यूनिवर्सिटी. सो ऐसे ही प्राइमरी रॉक, तो एजुकेशन का बेसिक रूट का है प्राइमरी. तो रॉक्स का जो है इसे कहते हैं प्राइमरी रॉक्स. यहीं से रॉक्स बनते हैं. इसके बाद ये मैनिपुलेट होकर डिफरेंट रॉक्स में चेंज होते हैं. तो igneous rocks also known as primary rocks. Okay, igneous rocks are 2 types. ये 2 टाइप्स होता है और इन दोनों को देखेंगे हम कैसे ये इसी वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू. आई एम श्योर कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा. igneous rocks are 2 types, extrusive rocks and intrusive rocks.
एक्सक्लूसिव मीन्स आउटसाइड, इंट्रूसिव मीन्स इनसाइड। इन दो चीजों से हम इग्नियस रॉक्स समझने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1 दैट इज द क्रस्ट। क्योंकि यहाँ पे सपोज कर लो दिस इज द क्रस्ट पार्ट, ये क्रस्ट पार्ट है, ये यहाँ पे क्रस्ट है आपका, एंड फ्रॉम देयर दैट इज द ये पार्ट हम लेते हैं जो आपको ये पार्ट हमने मान लिया क्रस्ट हो गया, ओके, एंड दैट पार्ट इज द मेंटल पार्ट वेयर molten magma situated. When they become so hot, आप जानते हो ना जब हॉट होता है तो एनर्जी, हीट एनर्जी भी होती है, और एनर्जी क्या करता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। सो ये वर्क क्या करता है कि इट लिफ्ट अपवर्ड की तरफ उठना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बॉयल द वाटर, व्हाट हैपेंड, it expanded and uplifted. So the same phenomena work here. So this magma came to earth with the craters. तो जो rocks, जो magma craters के आगे आ जाते हैं और rocks form होते हैं, that is known as the X2C rocks. इसी को हम कहते हैं X2C rocks. Remember, और इसको रिपीट करते हैं कि when this magma came on Earth's surface through the craters due to the volcanic eruptions known as X2C rocks. But some magma do not come on the surface of the Earth through the craters. Actually, they settle in the crust. ये क्रस्ट में सेटल हो जाते हैं, और जब क्रस्ट में सेटल हो जाते हैं तो दे यहाँ भी आके क्या होते हैं, कूल होते हैं, और कूल होने के बाद ये रॉक्स में चेंज होते हैं। सच रॉक्स नोन एज द इंट्रूसिव रॉक्स। ओके, एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स की एग्जांपल देख सकते हो। बसाल्ट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव रॉक्स, एंड ग्रेनाइट as the example of intrusive rocks. बसाल्ट जो है वो फाइन ग्रैंड पार्टिकल्स में आएगा, और ग्रेनाइट जो है थोड़े लार्ज पार्टिकल्स में होंगे। अच्छा, आप अपनी कंट्री इंडिया को देखते हो ना, इंडिया का जो आपने डेक्कन पार्ट देखा है, डेक्कन पार्ट समझ रहे हो, साउथ, ये डेक्कन पार्ट, इस डेक्कन पार्ट में बहुत सारे आपके, अच्छा रॉक्स का मतलब सिर्फ पहाड़ी नहीं होता है, पत्थर ही नहीं होते हैं, रॉक्स एक्चुअली इस मीनिंग ऑफ इसको कंसीडर कर सकते हो एज अ सॉइल भी। तो ये जो डेक्कन है दैट इज मेड ऑफ द बसाल्ट रॉक्स, ये बसाल्ट रॉक से बना है। इट मीन्स यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ हो, कूल डाउन हुए होंगे, और बसाल्ट जो है बना होगा। क्लियर? सो डे स्टूडेंट, इन सच ए वे we discuss about here igneous rocks. In my next video we discuss about sedimentary rocks as well as metamorphic rocks. And so you must understand it. If you have any suggestion, any problem without any hesitation, you can tell me. Till then, thank you, have a nice day.